Good morning, students. Last time we were talking about the structure of neuron. So we have talked about lots of things about the structure of neuron. Let me revise it fast. So neurons, if we talk about the structure, we are dividing it into three parts, three main structures we have discussed: the cell body, then dendrites and axon. So cell body is just like another typical cells which are having cytoplasm, nucleus, then cell membrane is there. The special thing about the cell membrane of this neuron is they are having Nissls granule, neurofibrils and neurotubules. Then dendrites are also having these structures, while axons are having neurofibrils and neurotubules, but they are missing with Nissls granules, Golgi bodies, ribosomes. So for the protein they are going to be dependent on the cell body. Now these axons, when they are ending, they are leading to the branch structures, the axon terminals, and when they are interacting with the another neuron, a gap is present between them, that is the synapse. And the portion of the axonal terminal which are going to interact with the muscles, that point is leading to formation of motor end plate. Some of the axons are also giving to branch structures. They are collateral fibers that are arising from the axons. If we talk about the membrane of axon, that is known as axolemma, and exoplasm is the cytoplasm that is present in the axons. Now we are going to talk about the type of neurons on the basis of their structure. There are various type of neurons that are present in different organisms, or we can say at different stages of life. First one are non-polar neurons. Means we are talking about the polarity. So these polars are having many processes. The cell body is leading to many processes, and these are not found in vertebrates. So many processes are present. Here we are talking about the processes are basically the neurites that is coming out from the cell body. So many processes are present, and they are present in simple organisms like Hydra. Second one are unipolar neurons. Unipolar, there is only one, or you can say neurite that is coming out. So there is only one axon. We are not talking about dendrites here. So unipolar neurons are only having one axon, and these type of neurons are seen in embryonic stages. कब प्रेजेंट होते हैं ये? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर प्रेजेंट होते हैं. जो थर्ड वन है दैट इज सूडो यूनिपोलर. पोलर न्यूरॉन्स. दिस सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये कैसे होते हैं? फ्रॉम द सेल बॉडी one single process is going to arise, and that process will differentiate into axon as well as dendrite. यहाँ पर हमने बोला एक ही axon होता है, dendrites नहीं होते हैं. यहाँ पर process तो एक ही arise होता है cell body से, but that process is going to behave as axon and as dendrite also. So this is the cell body. This is the process that is arising from the cell body. It is going to behave as dendrite, and the remaining is going to behave as a axon. So that's why it is known as pseudo unipolar. So this is how the pseudo, this is the cell having the nucleus and the cytoplasm. So from the cell body only one single process is arising, and that is differentiating into dendrite and axon. This pseudo unipolar neuron is found in the dorsal root ganglia of spinal nerves. We will going to talk about the spinal nerves also.
So here we are going to find out these pseudo unipolar neurons. Now the fourth type are bipolar neurons, bipolar neurons simply means two processes are there. From the cell body, two processes are arising. One process is going to behave as axon and the second one is going to behave as dendrite. So we have to simply remember about the processes that are arising from the cell body. So this is the cell body. The process that is this one is going to behave as axon and this is going to behave as dendrite. So two processes are arising. One is behaving as dendrite and second is behaving as a axon. This is known as bipolar neuron. These neurons are found in the eyes, you can say retina of eyes, and inner ear. These are the body parts where these type of neurons are present. And the last type are multipolar neurons. The structure which we talked about, जो हमने structure पढ़ा था, that was of a multipolar neuron. Multipolar simply means कि वहाँ से एक axon arise होता है और बहुत सारे dendrites arise होते हैं. So from a cell body, suppose this is a cell body, this is the axon that is coming out, nucleus is present and these are the dendrites that are present. So this is an example of multipolar neuron and these multipolar neurons are present in cerebral cortex. So the neurons that are present in cerebral cortex are the multipolar neurons. So depending upon the structure, we are having different type of neurons which are present in the different body parts. Now we are going to talk about the main organ of our neural system, that is brain, human brain. So we are going to start with our central nervous system and the first part of central nervous system is human brain. We have discussed human brain earlier also. So human brain is the most anterior part of our body that is present in the head region. It is a very soft organ that is protected by a hard bony structure और इस hard bony structure को हम क्या बोलते हैं? Cranium बोलते हैं. So it is protected. If we talk about the size of the human brain, it is weighing around 1.2 kg to 1.4 kg. This is the weight of the brain and it is having almost 100 billion of neurons. They are present in the brain. Very delicate organ and it is having the control and coordination over all the body parts. अगर हम protection की बात करते हैं, so first protection is provided by the cranium. Cranium is the protective structure that is made up of bones. जो second protective structure present होता है brains में, these are meninges. और ये meninges क्या हैं? These are layers. three layers are present in the brain और इन 3 layers को हम क्या बोलते हैं? meninges बोलते हैं. And these are also protecting the brain. अगर हम meninges की बात करते हैं तो जो फर्स्ट मेम्ब्रेन आती है that is known as pia mater. pia mater हम अंदर से बाहर की बात कर रहे हैं, that means ब्रेन के सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट में कौन प्रेजेंट है? pia mater, that is present next to the brain, then outer to this one and
outer to that one also. So we are moving from inside to outside. So if this is the brain, pia matter is present next to the brain. Pia matter कैसी है? Thin है. It is thin, delicate and vascular. Lots of blood supply is there. So pia matter is the innermost layer that is present next to the brain. Second one that is present next to the pia matter is arachnoid. This arachnoid is showing a web-like structure. A spider web-like structure is shown. So a network is there. It is also thin and it is showing a spider web like structure. और जो लास्ट में, ये मिडल में प्रेजेंट है और जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होती है, मीन्स कहाँ पर, स्कल की तरफ जो प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट नियर टू द स्कल, उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर हार्ड है, दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. इट इज fibrous and that is present near to the skull. So if I represent all these three membranes, how they are present? This is the innermost, that is thin. This is the pia mater. Pia mater के बाहर present है arachnoid. This arachnoid is going to show web-like structure. So it is moving like a web in different. So this is how a web-like structure is formed by the arachnoid. Excuse me. And outside too is dura mater is present. So this is how, this is the brain. The gray matter of the brain is going to be present over here. We'll talk about the gray matter and white matter also. And over here the white matter of the brain is present, of cerebral cortex. So if we label these parts, this is the brain part. The inner part is white and the outer one is grey matter. This is the pia matter. This is our arachnoid and this is the dura mater. So ये तीन meninges हैं जो इस तरह से लेयर में प्रेजेंट है. अब पाया मैटर और अरेक्नोइड के बीच का जो स्पेस होता है, दिस स्पेस दैट इज अ स्पाइडर वेब लाइक स्पेस, इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस. सो सब अरेक्नोइड स्पेस इज द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पाया मैटर एंड अरेक्नोइड. जो अरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर के बीच का स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सब ड्यूरल स्पेस. अब जो सब अरेक्नोइड स्पेस है, जो रीजन प्रेजेंट है अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में, यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो करता है. देयर इज अ फ्लूइड दैट इज सर्कुलेटिंग इन दिस स्पेस and this fluid is known as cerebrospinal fluid, CSF. So CSF is going to flow between the space that is present between pia matter and arachnoid. ये CSF क्या फंक्शन करता है? This CSF is acting as a cushion. So it is protecting our brain from the shocks and mechanical injury. ये कुशन की तरह काम करता है और किसी भी शॉक या मैकेनिकल इंजरी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. सेकेंडली, इट इज़ you can say medium for the exchange of material.
सब्सटेंसेस का जो एक्सचेंज होता है यहाँ पर, वेदर दे आर गैसेस और फूड सब्सटेंसेस, दे आर एक्सचेंज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो तीनों मेनिंजेस में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ मिलता है? इस सब अरेक्नोइड स्पेस में मिलता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सबड्यूरल स्पेस, दिस सबड्यूरल स्पेस इज ऑल्सो हैविंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। यहाँ पर भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट है, लेकिन वो CSF नहीं होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट 3 मेनिंजेस प्रेजेंट होती हैं, इनका फंक्शन प्रोटेक्शन का है। 2 मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सो क्रेनियम एंड मेनिंजेस ये हमारे ब्रेन के प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं। नाउ वी आर मूविंग टू आवर ब्रेन। सो वी आर डिवाइडिंग आवर ब्रेन इन 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स। हम हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज फोर ब्रेन। दिस फोर ब्रेन इज नोन एज प्रोजेंसेफ्लोन। और हमारे फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? वी आर हैविंग इन आवर फोर ब्रेन सेरिब्रम, olfactory lobes and diencephalon. So these are the 3 parts of our forebrain. हमारा जो forebrain है, we are calling it as prosencephalon, और इसमें हमारे olfactory lobe, cerebrum और diencephalon आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज नोन एज mesencephalon। हम मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं? mesencephalon बोलते हैं। एंड देर आर 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आर कमिंग इन आर मिड ब्रेन। दीज आर corpora, quadrigemina and crura cerebri. So we are going to study these 2 parts under our mid brain. जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड रीजन है, that is known as hind brain, and this hind brain is known as rhombencephalon. क्या क्या इंक्लूड करता है हमारा हाइंड ब्रेन? इट इज गोइंग टू इंक्लूड द सेरिबेलम, pons varolai and medulla oblongata. These are the parts of our brain. हम हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आते हैं सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स और डायनसेफ्लोन। मिड ब्रेन में आते हैं कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना एंड क्रूरा सेरिब्राई। एंड हाइंड ब्रेन इज हैविंग cerebellum, pons varolai and medulla oblongata. We are going to talk about all these parts of the brain in detail and their function. So today we are going to talk about olfactory lobes. In today's class we are just talking about olfactory lobes and something about cerebrum. Next we are going to talk in our next classes. So I am starting with forebrain, and in forebrain I am going to talk about olfactory lobes. So the first thing is olfactory lobes. These are part of forebrain. ये olfactory lobes हमारे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम हमारे ब्रेन का लेटरल व्यू देखते हैं तो वो दिखाई नहीं देते हैं, बिकॉज हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं ये ऑल्फैक्टरी लोब सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर डीप प्रेजेंट है। दीज आर कवर्ड बाय द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सो ये विजिबल नहीं होते हैं। अगर हम वेंट्रल व्यू देखते हैं हमारे ब्रेन का, देन वी आर गोइंग टू सी दीज लोब्स। सो ये एंटीरियरली प्लेस्ड हैं। सपोज आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वेंट्रल व्यू ऑफ आवर ब्रेन, तो एक ये दो, दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जिसने हमारे सेरिब्रियन हेमिस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
fissure is there. यहाँ पर we are having pituitary gland, and over here there is, this is how the olfactory lobes are present. तो अगर हम हमारे ब्रेन का वेंट्रल व्यू देखते हैं तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट हैं दो ओल्फैक्टरी लोब्स. अब ओल्फैक्टरी लोब के दो स्ट्रक्चर्स हैं. द अपर वन, दिस इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब. और ये पीछे जो ट्रैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ओल्फैक्टरी ट्रैक. So olfactory lobes are divided into two parts, olfactory bulb and olfactory tract. ये anteriorly located हैं और यहाँ से pair of olfactory nerves arise होती हैं. From here pair of olfactory nerves arise. और ये olfactory nerves किसके लिए responsible हैं? They are responsible for the smell. They are responsible for the detection of smell. So later on when we are going to talk about the different lobes of the brain, जब हम lobes की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि ये olfactory nerves हमारे brain के कौन से region में जाती हैं जहाँ से they are responsible for the detection of smell. अभी तक you just need to remember that olfactory lobe से pair of nerves arise होती हैं जो smell के detection के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर फोर ब्रेन. इसके बाद हमारे ब्रेन का सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दिस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम. जितना भी ब्रेन का पार्ट हम एक्सटर्नली हम देख सकते हैं दिस इज ऑल द सेरिब्रम. सो द सेकेंड वन इज सेरिब्रम. The largest part of our brain. अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं, सिंपली हमारा जो सेरिब्रम है ये दो हेमिस्फीयर से मिलके बना है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर. वी कॉल देम एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों बंडल ऑफ नर्व से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. दे आर कनेक्टेड लाइक दिस वे. सो आवर सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स which are connected by bundle of nerves. और इन बंडल ऑफ नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? These bundle of nerves are known as corpus callosum. सो कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, तो ये बीच में प्रेजेंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के, इसलिए हमें एक्सटर्नली दिखाई नहीं देता है. अगर हम बीच में कॉर्पस कैलोसम को देखते हैं, सो दिस कॉर्पस कैलोसम इज अपीयरिंग लाइक दिस वे. ये एंटीरियर साइड है, ये सिर्फ बीच का रीजन है, दैट इज शोइंग द बंडल ऑफ नर्व्स कॉर्पस कैलोसम. दिस इज कॉर्पस कैलोसम. एंटीरियर आगे की साइड में इट इज गोइंग टू फोल्ड बैक, अंदर की तरफ वापस से फोल्ड होता है. दिस पोर्शन दैट इज नोन एज जेनु, इट इज गोइंग टू फोल्ड बैक. ये नीचे की तरफ फोल्ड होता है. व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चर तब हम देखेंगे यहाँ से हाइपो इनफंडिबुलम इज देयर, हाइपोथैलेमस इज देयर. तो ये एंटीरियर आगे वाला साइड है जहाँ से ये बैक साइड फोल्ड होता है. इस फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? जेनु बोलते हैं. और अगर हम पीछे वाली साइड देखते हैं, पोस्टीरियर साइड देखते हैं, देन पोस्टीरियर साइड इज ऑल्सो गोइंग टू शो अ फोल्ड दैट इज नोन एज स्प्लेनियम. सो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली ये फोल्डेड होता है और बीच में एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज फॉर्निक्स. दिस इज आर कॉर्पस कैलोसम जो दो हेमिस्फीयर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है. आर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड आर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर.
कॉर्पस कैलोसम के बाद आता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा बाहर का जितना भी रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। वहां पर ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ग्रे मैटर कैसे बनता है और वाइट मैटर कैसे बनता है, हमने न्यूरॉन्स की बात की थी। सो न्यूरॉन्स में जिस रीजन में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोन्स प्रेजेंट है, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है, वो हमें वाइट अपीयरेंस देते हैं। सो वी कॉल इट एज वाइट मैटर। और जहाँ पर भी गैंग्लियाज बनते हैं, एक्सोनल टर्मिनल्स, दे एग्रीगेट जो सेल बॉडीज हैं, जो बाहर वाले स्ट्रक्चर वो एग्रीगेट करते हैं, दे गिव अ डार्क अपीयरेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं। जो हमारा कॉर्टेक्स है उसका जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, बाहर वाला जो पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये स्मूथ नहीं है, इट इज गोइंग टू शो सम डिप्रेशंस एंड सम अपवर्ड ऑब्स्ट्रक्शंस आर ऑल्सो देयर। सो कुछ पार्ट्स ऊपर की तरफ मूव है और कुछ पार्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है, कुछ अपवर्ड मूव कर रहा है और कुछ डिप्रेशंस में मूव कर रहा है। सो जो अपवर्ड पार्ट है दैट अपवर्ड पार्ट इज नोन एज गायरी, और जो डिप्रेशंस प्रेजेंट हैं उन डिप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, सल्काई बोलते हैं। अब these upward parts and depressions they are providing a rough surface, ये हमारे ब्रेन को रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और इस रफ सरफेस की होने की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इंक्रीज्ड सरफेस एरिया क्यों चाहिए है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स ब्रेन में अकोमोडेट हो सकते हैं। सो सिंपली टू अकोमोडेट मोर एंड मोर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ रफ सरफेस इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जब हम इससे नीचे की तरफ बात करते हैं देन देयर बहुत सारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर मेकिंग आर वाइट मैटर। सो जहाँ पर भी एक्सोनल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो हमारा वाइट मैटर बनाएगा, और जहाँ पर भी सेल बॉडीज एग्रीगेट होती हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म द ग्रे मैटर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो बाहर हमें ग्रे मैटर मिलता है और अंदर की तरफ हमें वाइट मैटर मिलता है। नाउ आवर ब्रेन, or you can say this cerebrum is divided into 4 lobes। हमारा cerebrum 4 lobes में divided है, our frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe, and 3 sulcus are there। 3 sulcus present है जो हमारे brain को इन 4 lobes में divide करते हैं, and each lobe is performing its particular function। So let's understand the lobes present in the brain with the help of diagram। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द 4 lobes। हम 4 lobes की बात कर रहे थे। सो दिस इज आवर फर्स्ट लोब दैट इज द फ्रंटल लोब, दिस वन इज द टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को जो सल्कस डिवाइड करता है दिस इज नोन एज लेटरल सल्कस। इट इज गोइंग टू डिवाइड द फ्रंटल लोब एंड temporal lobe. Now this is our parietal lobe। ये हमारा फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है। फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को जो सल्कस डिवाइड करता है दिस इज द सेंट्रल सल्कस। दिस सेंट्रल सर्कस इज डिवाइडिंग द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। दिस इज द बैक साइड जो प्रेजेंट है दिस इज आर ऑसिपिटल लोब, and the sulcus that is dividing the parietal lobe and occipital lobe it is known as parieto-occipital sulcus।
So this is how these three sulcus are present which are dividing in our brain in 4 lobes. ये 4 lobes में हमारे ब्रेन को डिवाइड करते हैं. अब हम जब हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन में 3 मेजर एरियाज हैं. दीज आर, हमने पहले भी बात की थी, मोटर एरिया. So we are starting with sensory area, motor area and association area. ये 3 एरियाज फंक्शन करते हैं. सी, सेंसरी एरिया में हमने बताया कि जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है वहाँ से मैसेज किसके पास जाता है, सेंसरी एरिया में जाता है. मोटर एरिया मैसेज को वापस से यू कैन से वॉलंटरी मसल्स के पास सेंड करती है. एसोसिएशन एरिया डायरेक्टली मैसेज को रिसीव या सेंड नहीं करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटेशन. तो एसोसिएशन एरिया हमारी मेमोरी, लर्निंग और रीजनिंग के साथ रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस स्टोर हैं. सो ये एरिया इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है. रिसीव करने का काम सेंसरी एरिया करता है, सेंडिंग का काम मोटर एरिया करता है और इंटरप्रिटेशन का काम कौन करता है, एसोसिएशन एरिया करता है. सो इफ़ वी सी द सेंसरी एरिया, तो जो सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है इन द पैराइटल लोब विच आई हैव मार्क्ड विद दिस रेड कलर, दिस इज द सेंसरी एरिया. और इसको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट सेंट्रल एरिया. ये हमारा सेंसरी एरिया है विच इज लाइंग पोस्टीरियरली टू द सेंट्रल सर्कस इन द पैराइटल लोब. सेंट्रल सर्कस के एंटीरियर साइड में जो प्रेजेंट है दिस रीजन, दिस एरिया, दिस इज द मोटर एरिया और यू कैन से प्री सेंट्रल एरिया. और यहाँ पर जितने भी मैसेज हैं ब्रेन से वापस वॉलंटरी मसल्स के साथ जाते हैं. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉलंटरी मसल्स और सेंसरी एरिया रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और हमारे ब्रेन में बहुत सारे एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट हैं. से हमारे फ्रंटल लोब में एक एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है. दिस पार्ट इज ऑल्सो हैविंग अ एसोसिएशन एरिया. टेम्पोरल, पैराइटल. सो यहाँ पर फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, ओसिपिटल एसोसिएशन एरिया, पैराइटल एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट है जो मैसेज को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अदर देन दिस देर आर लॉट ऑफ रीजन्स दैट आर प्रेजेंट इन आर ब्रेन. जो हमारा ओसिपिटल लोब है, दिस ओसिपिटल इज लोब इज हैविंग दिस विजुअल एरिया. ओसिपिटल लोब में ये विजुअल एरिया प्रेजेंट है जो हमारी साइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. लाइकवाइज दिस पैराइटल लोब इज हैविंग दिस एरिया जो टेम्पोरल लोब तक मूव करता है. दिस इज द सेंसरी स्पीच एरिया. और ये सेंसरी स्पीच एरिया हमारी स्पोकन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट इज गोइंग टू परसीव द words. So this is how sensory speech area is present. अगर हम temporal lobe की बात करते हैं, so over here auditory area is there जो हमारी hearing के लिए responsible होता है. So in this temporal lobe this auditory area is present. अगर हम टेम्पोरल लोब के बिल्कुल ऊपर देखें तो पैराइटल रीजन में मूव करता है दिस स्मॉल एरिया दैट इज द टेस्ट एरिया. It is responsible for the taste. Over here, this part of the temporal lobe that is having the olfactory area. जब हम ओल्फैक्ट्री लोब्स की बात कर रहे थे देन वी टॉक्ड अबाउट कि ओल्फैक्ट्री लोब से पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं. सो दोज पेयर ऑफ नर्व्स आर कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब और यहाँ पर हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. सो दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल. ओवर हेयर इन द फ्रंटल लोब दिस इज द मोटर स्पीच एरिया.
which is going to control our pronunciation, our vocab and our speech. So this is how different areas are present in the brain which are dealing with the different functions. अगर हम हमारे ब्रेन का लेफ्ट टेम्पोरल लोब देखते हैं तो वहाँ पर एक और एरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज वर्निक्स एरिया, और ये वर्निक्स एरिया हमारे राइटिंग को और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स के साथ डील करता है. सो दिस इज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर डीलिंग विद डिफरेंट functions. So next time we are going to discuss about the rest of the parts of the brain.